Actually, in last lecture we have completed the kapha dosha. Actually, you know that vata, pitta, and kapha, these three doshas are there. If we not maintaining the proper ahar and vihar, in the sense diet and regimen, then patient can lead to disease. That's why it is considered as the dosha. Actually, the when we go through the definition of dosha, at that time it is told that dushanata dosha. Dushanat means which are able to does dushana, which are able to produce disease if they are not maintained well. In the sense, suppose the patient it is there, if we are not maintaining the patient by proper way or not maintaining our diet and habit, in the sense we are taking a daytime sleep can increase the kapha dosha. If we are not doing the exercise, it increases the kapha. If we are doing more exercise, it increases the vata. If we are doing more that sexual intercourse, it increases the vata. If we are taking the ruksha type of ahar vihar, it increases the vata. If we are taking the ushna tikshna ahar vihar, it increases the pitta. If we are taking the guru snigdha gunatmak ahar, it will increases the kapha. Then when the disease production takes place, that disease production it will happen by certain ways, and that ways in the sense these are the steps of the disease production, and that's why it is considered total 6 steps are there. That nothing but it is considered the chikitsa usar, in the sense chance to treat the patient. In the sense, suppose we treat the patient in early stage, it will not reach in the later stage, complicatory stage. That's why these are the 6 stages of disease production. That is considered the Shata Kriya Kala. Kriya means these are the steps, stages. Kala means time. Shata means 6. That total 6 time periods are there, 6 stages are there, which gives opportunity to treat the patient earlier. If we are not treating the patient in earlier phase, patient will reach in the complication. Suppose the one patient come to you and the patient is suffered with the loose motions. 3-4 times loose motions are there. We not seriously taken that 3-4 times loose motion. We unaware that, we neglected that, and same patient goes to dehydration. In the sense, patient blood pressure get down, pulse rate is somewhat hampered, or dehydration is very severe. In such condition, which stage is very simple? First stage, that nothing but 3-4 times loose motion is very simple stage to treat. But suppose that same patient reach in the 16 to 20 times loose motion along with the severe dehydration, it is very difficult to treat. That's why when you want to treat the patient, always you should treat the patient in earlier stage. Don't go for the later stage, or don't wait for the later stage. That's why actually these Shata Kriya Kala are there. Shata Kriya means, Shat means 6, Kriya means these are the activities of the disease or treatment, and Kala means time or stages. And that's why according to Susruta Samhita, this Shata Kriya Kala is explained. And Shata Kriya Kala is nothing but it is opportunity to earlier treatment, opportunity to earlier treatment, or in the earlier stage. That is the Shata Kriya Kala. You should write this Shata Kriya Kala definition of this. सर काही स्टुडंट्स वेटिंग मध्ये त्यांना ऍड करा म्हणतात. It is on screen. Shata means 6, Kriya means disease activity or treatment, and Kala means time of stages. We have these 6 opportunities. Susruta Samhita Sutrasthan 21 chapter 36 number shloka. This Shata Kriya Kala is explained well.
You should note down this shloka. These are the 6 stages. Sanchaya, Prakopa, Prasara, Sthan Samshaya, Vyakt and Bhed. That Sanchayam cha Prakopam cha Prasaram Sthan Samshayam Vyakti Bhedam cha Vetti Doshanam sa Bhaved Vishaka. Means according to Susrut Samhita Sutrasthan, Sanchaya, Prakop, Prasar, Sthan Samshaya, Vyakt and Bhed. Sanchaya means accumulation. Prakop means that we can consider the aggravation. Prasar means spreading. Sthan Samshaya means it get localized. Vyakta means it get visible, and Bhed means we can differentiate it. In the sense, we can take one example. Suppose one tap is running, and in that water is going to flood. That when it is present in that particular bucket, it is considered as sanchaya. So when it is flowing from that bucket, it is considered the aggravation. That nothing but flowing prakopa. Prasar means it is spreading all over that surrounding structure. And स्थान संशय मीन्स इट गेट लोकलाइज एट एनी डिप्रेस्ड एरिया. काय होतं बघा, पाणी असेल एखाद्या बकेटमध्ये पाणी आहे आणि ते नळ आपला चालूच राहिला तर काय होणार, पाणी त्यामधनं उलटायला लागणार. पाणी बकेटमध्ये आहे तोपर्यंत संचय, बकेटमधनं उलटायला लागलं प्रकोप, बकेटमधनं उलटून सांडून सगळीकडे पसरायला लागलं सराउंडिंग मध्ये, त्याला प्रसर म्हणणार आपण. ते बकेटमधनं पसरून एखाद्या ठिकाणी, आता एखादी म्हणजे डिप्रेस्ड एरिया आहे तिथं जाऊन साठलं तर त्याला म्हणणार आपण स्थान संशय. आणि तिथं आपल्याला दिसायला लागलं तर त्याला म्हणणार व्यक्त. आणि कुठल्या कलरचं आहे, कुठल्या पद्धतीचं पाणी आहे, चांगलं आहे का वाईट आहे, काय आहे ते बघणार आपण, त्याला म्हणणार आपण भेद. हे सगळ्या आजाराच्या नुसार आपण बघतो. संचय म्हणजे स्टेज ऑफ अक्युम्युलेशन, प्रकोप स्टेज ऑफ ॲग्रेवेशन, प्रसर म्हणजे स्प्रेडिंग स्टेज, स्थान संशय मीन्स स्टेज ऑफ लोकलायझेशन, व्यक्त मीन्स वी कॅन विजिबल द सिम्पटम्स, and Bhed means Vataj, Pittaj, Kapaj. In that way, we can differentiate it. Write this shloka. झालं सर. सर वेटिंग वर आहे, स्टुडंट वेटिंग. ओके. तर सभी के एक एक स्टेज अगर हम कंसिडर किए हैं तो वात पित्त कफ उसके ओन साइट में ही इंक्रीज होने लगे तो उसको हम बोलेंगे संचय. उनके ओन साइट में, वो साइट छोड़ते नहीं, अभी तक उनके ओन साइट में है, उसको हम कंसिडर करेंगे संचय. उसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन. किधर? ओन साइट में. वात रहेगा पक्वाशय में, पित्त रहेगा नाभि प्रदेश में, कफ रहेगा उर प्रदेश में, उधर से छोड़ के नहीं जाते, अभी तक उधर ही प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे संचय. राइट दिस. संचय बोले तो स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन इन ओन साइट. जो हम डैम रहता है ना, डैम का पानी डैम में कलेक्ट होना संचय. डैम का ये मतलब लेवल तक जाना कि फुल हो जाना वो डैम, प्रकोप. उधर से स्प्रेड होने लगना, प्रसर. और उधर से नदी में बह के किधर तो दूसरे छोटे डैम में जाके कलेक्ट होना, स्थान संशय. उधर चाहे तो एक ऐसा डायग्राम निकाल के रखो, मतलब आपको याद रहेगा कैसे है.
नेक्स्ट है प्रकोप स्टेज. प्रकोप बोले तो क्या है? स्टेज ऑफ एग्रीवेशन. एग्रीवेशन बोले तो उसके साइड में, लेकिन इट रीच एट द मैक्सिमल लेवल. बोले तो एग्जांपल दिया है देखो, लाइक वाटर डैम इज फुल ड्यू टू हेवी रेन. चाहे तो वो लिख के रखो, तो आपको याद रखने के लिए एग्जांपल वो इजी रहेगा. वाटर डैम है कंप्लीटली फिल हो गया है, फुल हो गया है. नेक्स्ट प्रेशर जो है, प्रेशर बोले तो डैम ओपन हो जाएगा और रिवर में फ्लड स्टार्ट हो जाएगा, वो टाइप की कंडीशन. प्रेशर बोले तो स्प्रेडिंग, दैट नथिंग बट इट लीव्स देयर ओन लोकेशन एंड स्टार्ट टू स्प्रेड एट अदर साइड. वो लिखो प्रेशर. प्रेशर बोले तो लीव्स ओन लोकेशन एंड स्टार्ट टू स्प्रेड एट अदर साइड. नेक्स्ट है स्थान संशय. बोले तो इधर क्या होता है? फ्लड हाउस में एंट्री होना. जिधर लो लेवल हो उधर जाके वो क्या वीकर टिश्यू में जैसे क्या हो जाता है, विशेषित दोष है, वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं. बोले तो जो धातुज है, नहीं तो मल है, जिधर उनको लोकेशन मिले, जिधर उनको जगह मिले, जिधर वीक है, वो पॉइंट में जाके क्या हो जाते हैं? वो लार्ज हो जाते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. समझो वात दोष है. वात दोष का नॉर्मल लोकेशन किधर है? पकवाशे. पकवाशे. समझो क्या हो गया? आप वात कर आहार विहार ही लेने लगे, क्या हो जाएगा? वो पकवाशय में बढ़ने लगेगा. क्या बोलेंगे उसको? पकवाशय में बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा. संचय. पकवाशय में एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, पकवाशय से अभी बाहर निकलने वाला है, ये स्टेज है, उसको बोलेंगे प्रकोप. प्रकोप. उधर से पकवाशय से बाहर आके वो बाकी सराउंडिंग में स्प्रेड होने लगा, उसको बोलेंगे प्रसर. और वो समझो जॉइंट में जाके बैठ गया. जॉइंट प्लेस है हमारा. जॉइंट बोले तो अस्थि संधि है, अस्थि संधि में गया और उधर जाके लॉज हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे अभी? स्थान संश्रय. वो स्थान है ना, स्थान दूसरा संश्रय. लोकेशन है. हाँ, उसके लोकेशन में जाके क्या हो जाता है? लॉज हो जाता है. उधर जो डिसीज होता है उसका नाम क्या होगा फिर? वात किधर गया? संधि में गया, तो उसको हम बोलते हैं संधिगत वात. क्या बोलते हैं? संधिगत वात. संधिवात ऐकलंय का नाही? यस सर. हा, संधिवात sir. म्हणजे काय होतो? वात तिथून निघतो आणि जॉईंट प्लेसला जाऊन तिथं पेनफुल सिच्युएशन क्रिएट करतो, त्याला म्हणतो आपण संधिगत वात. तसं डोक्यात गेला शिरोगत वात, मानेत गेला मन्यागत वात, स्नायूमध्ये गेला स्नायुगत वात. असे वेगवेगळे वाताचे प्रकार आहेत, म्हणजे ते डिसीजचे प्रकार आहेत. मग ही काय होणार? फोर्थ स्टेजला स्थान संशय म्हणजे लोकलाइज होणं. आता इथं कुठं लोकलाइज झाला? संधिगत वातामध्ये जॉईंटला. मग समजा नी जॉईंटचा संधिगत वात झाला तर नी जॉईंट मध्ये तो लोकलाइज झाला, त्याला लोकलायझेशन. त्याला स्थान संशय म्हणजे स्टेज ऑफ लोकलायझेशन.
नेक्स्ट स्टेज असते ती व्यक्त. ही स्टेज असते ती डायग्नोसिस ऑफ डिसीज साठी महत्वाची असते. इथं काय होतं, आपल्याला व्याधी कळते म्हणजे डिसीज झाल्याला लक्षात येतं. व्यक्ती म्हणजे स्टेज ऑफ मॅनिफेस्टेशन. इथं आपल्याला संधीमध्ये वेदना सुरू होणार, म्हणजे कळणार की ह्याला संधिगत वाताची लक्षणं सुरू झालीत, म्हणजे त्याला म्हणायचं स्टेज ऑफ मॅनिफेस्टेशन. डायग्नोसिस ऑफ डिसीज कॅन बी मेड इझिली. त्याच्यानुसार आपल्याला चिकित्सा करता येते, इथं सुरू करता येते व्याधीनुसार कुठला डिसीज असेल ते. मग त्यात आपण बघणार वात जास्त वाढलाय का, पित्त वाढलंय का, कफ वाढलंय, कुठला दोष आहे ते बघणार, म्हणजे भेद म्हणजे डिफरन्शिएशन करणार. वातज आहे, पित्तज आहे, का कफज आहे, असं. व्यक्ती म्हणजे स्टेज ऑफ मॅनिफेस्टेशन. समजते ना सगळ्यांना? हो सर. आता काय झालं, डिसीज व्यक्त झाला. व्यक्त होणं म्हणजे काय, मॅनिफेस्ट होणं, मॅनिफेस्टेशन. मॅनिफेस्टेशन झाल्यावर आपल्याला कळणार की डिसीज झालाय असं. आतापर्यंत कळलं नव्हतं, हे सगळं आतमध्ये सुरू होतं. ही सगळी संप्राप्ती म्हणतो आपण याला, पॅथोजेनेसिस. ही पॅथोजेनेसिस कम्प्लीट कधी होतं, व्यक्ती म्हणजे लक्षणं दिसायला लागतात. हिअर अपीअरन्स ऑफ सिम्पटम्स लिखो. व्यक्ती बोलतो स्टेज ऑफ मॅनिफेस्टेशन अँड अपीअरन्स ऑफ सिम्पटम्स, लक्षणाज. नेक्स्ट आहे भेद. भेद बोले तो डिफरेंशिएशन, स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन. स्पेसिफिकेशन ऑफ दोषाज. इसमें बोले तो हम कंसिडर करते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद आईएसडी है, उसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, लेकिन उसमें हमें कंपेयर करना है कि एक वेसल का इस्चेमिया है, डबल वेसल का है, या 3 वेसल का है. जो कोरोनरी आर्टरीज रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी में 3 रहते हैं, आपने सुना होगा नहीं तो देखा होगा. एंजियोग्राफी जो करते हैं, एंजियोग्राफी में रहता है सिंगल वेसल डिसीज, डबल वेसल डिसीज, ट्रिपल वेसल डिसीज. वो कौन सा है, वो डिफरेंशिएशन करना बोले तो 6 स्टेज बोले तो भेद. भेद बोले तो डिफरेंशिएशन. More specification of dose involvement. Which dose is involved? We can find out here. ये जो 6 स्टेजेस है, 6 स्टेजेस के कैसे पहचानने का हमें, वात अभी कौन सी अवस्था में है, तो उसके लिए हमें क्या पता रहना चाहिए, उसके लक्षण, संचय में क्या लक्षण रहते हैं, प्रकोप में क्या लक्षण रहते हैं, प्रसर में क्या रहते हैं, स्थान संश्रय में क्या रहते हैं, व्यक्त में क्या रहते हैं, भेद में क्या रहते हैं, वो लक्षण आज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इधर चय अवस्था, चय बोले तो संचय अवस्था, एक्यूमुलेटरी स्टेज. तो तत्र संचिता नाम खलु दोषा नाम, ये सभी के लक्षण दिए है. स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, कोष्ठ जो है हमारा, कोष्ठ बोले तो क्या, हम बोलेंगे कि जीआई ट्रैक. जीआई ट्रैक आपको स्तब्ध, स्तब्ध बोले तो स्टेडी लगता है. पूर्ण कोष्ठता बोले तो आपको फुल एब्डोमिनल फुलनेस क्रिएट होता है वातज में. पित्तज में पीता व भासता, येलोइश डिस्कलरेशन रहता है. मंदोष्मता बोले तो अग्नि उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है. मंदोष्मता अंगाराम गौरव आलस्य. अंग गौरव बोले तो, मंदोष्मता बोले तो अग्निमंद होना, अंग गौरव बोले तो हेवीनेस आना बॉडी में, आलस्य बोले तो लेजीनेस क्रिएट होना. ये क्या है, सभी वात के, पित्त के और कफ के लक्षण है. चय कारण विद्वेष चेति लिंगानी भवंती चे एव जयत दोषम. इसी अवस्था में आपने पहचान के वात इधर से मूवमेंट करने में के कंडीशन में है, पित्त मूवमेंट के कंडीशन में है, तो इधर ही ट्रीटमेंट किए तो पेशेंट को डिसीज नहीं हो जाएगा. ये स्टेज में पेशेंट आपको पास आना चाहिए. हम बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास आने के बोलते हैं आप थोड़े जल्दी आते तो ट्रीट हो जाता, अभी आप बहुत लेट आए. लेट आना बोले तो कौन से स्टेज में जाएगा, वो व्यक्ति भेद स्टेज में जाएगा. और अर्ली बोले तो 6 अवस्था में वो पेशेंट जाना चाहिए. अभी स्टार्ट हुआ है डिसीज प्रोडक्शन, तभी ट्रीटमेंट लिए तो जल्दी ठीक हो जाएगा. वो लिखो, श्लोका लिखो.
तीनों दोष के सिम्टम इधर लिखे, श्लोका लिखे होने के बाद बोलो मुझे। तुम्हें वात के लक्षण लिखो, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, फुलनेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट, पित्त का, पीता व भासता, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ बॉडी। कफ का, मंदोष्मता, मंदाग्नि, बोले तो इंडाइजेशन। अंग गौरव, हेवीनेस ऑफ बॉडी। और आलस्य बोले तो लेजीनेस। इधर दिया है, देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, चाहे तो आप बाद में लिख सकते हो। क्षय अवस्था के लक्षण है, अभी जो हमने लिखा वही है, वात के, पित्त के और कफ के। शब्द पूर्ण कोष्ठता, फीलिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। पित्तावस्था, येलोइश डिस्कलरेशन। नेक्स्ट है प्रकोप अवस्था में, बोले तो नेक्स्ट स्टेज में गया दोष, तो कैसे समझने का? तेषाम प्रकोपात, प्रकोप हुआ तो कोष्ठ तोद संचरण, कोष्ठ में तोद बोले तो प्रिकिंग पेन होने लगता है, फील होता है हमें। अम्लिका पिपासा, अम्लिका पिपासा बोले तो सोर बेल्चिंग आने लगते हैं। पिपासा बोले तो थ्रस्ट क्रिएट होता है। परिदाह, एब्डोमिनल, मतलब ये कंसिडर करते कि हम परिदाह, बर्निंग सेंसेशन। अन्न द्वेष क्रिएट होता है, अन्न द्वेष बोले तो डिजायर जो है, फूड लेने की डिजायर कम हो जाते हैं। हृदय क्लेदच्छ जायन्ते, और हृदय उत्क्लेश बोले तो हृदय बाहर निकाला जा रहा है, ये टाइप के सिम्टम फील होने लगते हैं। इधर है देखो, वात के, पित्त के और इसके कफ के लक्षण है। वात के, पित्त के, कफ के, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखो। कोष्ठतोद संचरण बोले तो पेन एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ द वात। अम्लिका बोले तो सोर बेल्चिंग्स। पिपासा बोले तो एक्सेसिव थ्रस्ट। परिदाह बोले तो बर्निंग सेंसेशन। कफ में अन्न द्वेष बोले तो एनोरेक्सिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। हृदय उत्क्लेश बोले तो नॉजिया। नेक्स्ट पेशेंट जाता है प्रसर अवस्था में, बोले तो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। वात पित्त कैसे पहचानने का? इस श्लोक का भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखो। ये वो प्रकोपिता नाम प्रसरताम चे वायु विमार्ग गमनम, वायु का विमार्ग गमनम हो जाता है, वायु उसका वन साइड छोड़ के अभी दूसरे साइड में स्प्रेड होने लगता है। आटोप बोले तो गुड़गुड़ा शब्द, गर्गलिंग साउंड इन द एब्डोमेन। ओश चोश परिदाह,
ये धूमायन पित्त के लक्षण, आरोचक, अविपाक, अंगसात, छर्दी कफ के लक्षण। इधर देखो चार्ट है। विमार गन्नम वात में अगर कंसिडर किए तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स रहता है। आटोप बोले तो गुड़गुड़ शब्द लगता है, गरगरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। होश चोश बोले तो बर्निंग सेंसेशन। परिदाह बोले तो बर्निंग है। उसके बाद धूमायन बोले तो फ्यूम्स आंखों के सामने आ रहे हैं, ये टाइप का फीलिंग रहता है पेशेंट को। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाद में आपको नोट्स कंप्लीट करना है। उसके बाद कफ के लक्षण अरोचक रहता है, एपेटाइट कम हो जाता है। अविपाक बोले तो इंडाइजेशन रहता है। अंग सात बोले तो डेबिलिटी, कंप्लीटली बॉडी में मतलब काम करने की इच्छा नहीं रहती, डिजायर नहीं रहता। छर्दी बोले तो वोमिटिंग रहता है। ये कफ के सिम्टम। प्रसर अवस्था में जा रहा है तो अभी कंप्लेंट्स बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ एब्डोमिनल में प्रिकिंग पेन हो रहा था, अभी कैसा है, वो कंप्लीटली प्रिकिंग पेन है, वो अभी विमार गमनम हो गया। अटोप, अभी गर्गलिंग साउंड आ रहा है, बाकी टाइप के सिम्टम आ रहे हैं। बाद में पेशेंट जाता है फोर्थ स्टेज में। उसका फोर्थ स्टेज में गया तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा। स्थान संश्रयिना क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम। स्थान संशय हो गया तो आपको कौन सा डिसीज होने वाला है, बोले तो आपको सर्दी खांसी नेक्स्ट कल होने वाले है, तो थ्रोट में इरिटेशन होता है पहले दिन, वो है स्थान संशय। उधर क्या हो गए, दोष लोकेट हो गए हमारे थ्रोट रीजन में, वो डिनोट करता है स्थान संश्रयिना क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वान्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। बोले तो दोष जो है, वो दोष आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूर्व रूप है। पूर्व रूप बोले तो प्री मॉनिटरिंग सिम्टम्स है। वो प्री मॉनिटरिंग सिम्टम आपको अर्ली दिखाई देते, और अर्लियर दिखाई देना कब दिखाई देते हैं, स्थान संशय के स्टेज में दिखाई देते, उसको बोलते हैं हम वार्निंग सिम्टम्स। थ्रोट में पेन हो रहा है बोले तो नेक्स्ट सर्दी खांसी हो सकती है, उसका एक वार्निंग साइन है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखो, उसका श्लोका लिखो। When doshas get localized, pre-monitoring symptoms get appeared. Pre-monitoring symptoms get appeared. नेक्स्ट है व्यक्त अवस्था। व्यक्त बोले तो व्यक्त होना, व्यक्त बोले तो व्याधि दर्शन अवस्था बोलते हैं हम उसको। व्याधि विजुअलाइज होने लगती है। बोले तो पेशेंट को लूज मोशन, अभी तक सिर्फ आटोप हो रहा था, एब्डोमिनल गर्गलिंग हो रहा था, थ्रोट इरिटेशन हो रहा था, आज राइनोरिया रनिंग नोज होने लगा, नहीं तो आज लूज मोशन होने लगे, वो उसका लक्षण है। आपको समझ में आ जाएगा इसको डिसेंट्री हुआ है, नहीं तो डायरिया हुआ है, नहीं तो इसको बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। ये समझ में आना बोले तो व्यक्त अवस्था में जाना। उसमें है एग्जांपल से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। व्यक्त अवस्था बोले तो व्याधि दर्शन अवस्था, व्याधि का दर्शन है। प्रवाहिका बोले तो डिसेंट्री, डिसेंट्री में प्रवाह न रहता है, डिसेंट्री में स्टेनिंग करना पड़ता है, स्टूल ऐसा नॉर्मली पास नहीं होता। कामला में कामान लाती थी, कामला बोले तो आपकी कुछ भी खाने की डिजायर कम हो जाती है, कामला वो कंडीशन में। ग्रहणी बोले तो मुहूर द्रवम मुहूर बद्धम, बोले तो कभी लूज मोशन रहते हैं, कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसीज के स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप होते हैं। अतिसार में लूज मोशन रहेगा, कामला में सीवियर एनोरेक्सिया रहेगा, प्रवाहिका में स्ट्रेनिंग रहेगा। इससे आपको समझ में आता है कि पेशेंट का कौन से स्टेज में वो चल रहा है। भेद अवस्था बोले तो उसमें समझो लूज मोशन है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। लूज मोशन में येलोइश कलर का है तो पित्त, फ्रोदी है और व्हाइटिश कलर है कफ, वो मोस्टली ब्लूइश कलर का नहीं तो डार्क कलर का है, और सीवियर पेन है एब्डोमेन में तो वात। इसको आपको समझ में आ जाएगा। पेन हमेशा रहता है वात में, येलोइश कलरेशन रहता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है पित्त में, हेवीनेस रहता है और उसके साथ साथ फ्रोदिंग रहता है कफ में। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का अतिसार है। पहले हमें व्यक्त स्टेज में क्या समझ में आ गया, डिसीज कौन सा है, अतिसार है, लेकिन कौन से टाइप का अतिसार, वातज अतिसार, पित्तज अतिसार या कफज अतिसार, वो इसमें समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। इसमें भेद अवस्था में ज्वर समझो, हमें क्या लगता है, फीवर आया, ज्वर है, ज्वर में वो टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कोविड है, वो समझना बोले तो भेद।
सिर्फ ज्वर आए, फीवर आए बोलो तो फीवर कौन से तो टाइप का फीवर है उसको हम बोलेंगे व्यक्त, फीवर आया व्यक्त अवस्था। और फीवर कौन से टाइप का है आपने आइडेंटिफिकेशन किया, भेद अवस्था। चाहे तो एग्जांपल में लिख के रखो, अपीयरेंस ऑफ फीवर व्यक्त अवस्था, एंड वी डिफरेंशिएट इट टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, इट इज भेद अवस्था। इसमें ये स्टेजेस है, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्तन, भेद। इस स्टेज के अनुसार ये हमें ये है इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ षट क्रियाकाल इन आयुर्वेद और इंपॉर्टेंस ऑफ षट क्रियाकाल इन चिकित्सा। ये मोस्टली आपका 100% क्वेश्चन रहता है षट क्रियाकाल करके, उसमें आपको आना चाहिए। क्यों आना इंपॉर्टेंस है, आप अर्लियर डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। छाया चय अवस्था में आपको दोष को जय कर सकते हैं, बोलो तो उसके ऊपर विन कर सकते हैं। कैंसर कंप्लीटली लास्ट स्टेज में जाने के पहले आपको ट्रीट करना अच्छा बात है, वो बोले तो चय अवस्था में ट्रीट करना चाहिए आपको। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं प्रॉपर टाइम में किया तो, इसके लिए वो स्थान संशय अवस्था से अच्छा है। व्यक्त स्थान संशय से आप प्रसर अवस्था में अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखे तो आपको हाइपर एसिडिटी ट्रीट नहीं किया तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं ट्रीट किया तो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं ट्रीट किया तो क्रोनिक अल्सर होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं ट्रीट किया तो पाइल्स होते हैं, पाइल्स से ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। बोले तो ये स्टेजेस है, आप पहले कब ट्रीट करो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना उसी टाइम उसको ट्रीट करो। उसके बाद ड्राई कफ, कोल्ड कफ, डिस्निया, ओबेसिटी, उसके अनुसार उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत अच्छी है। और इसके अनुसार आपको समझ में आता है कि मोस्टली क्या करना चाहिए, कब आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से अवस्था में ट्रीटमेंट करना चाहिए, चय अवस्था। चय अवस्था में। नहीं हुआ तो कब करना चाहिए, चय अवस्था में पेशेंट आपके पास नहीं आया, प्रकोप अवस्था में है या प्रसर में जाने तक वेट करना चाहिए। प्रकोप हेलो, प्रकोप अवस्था, प्रकोप अवस्था में ही आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है इसमें। हेलो, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ षट क्रियाकाल। आपको रोल नंबर दिए है ना टेम्पररी, यस हाँ सर। सर, रोल नंबर 3 किसका है, 3 सर ऋषिकेश जाधव। तुला 1 ते 10 नंबर कोणाचे आहेत ते माहिती आहे का, 1 नंबर पासून 10 नंबर कोण आहेत ते माहिती आहे का? सगळे नाहीत माझं. बरं ठीक आहे, उद्या तू काय करायचं, मला षट क्रियाकालचा इम्पॉर्टन्स लिहून दाखवायचा। हो सर. ओके ठीक आहे। आणि रोल नंबर 17 आहे का नाही, रोल नंबर 18 हो सर. तुला सांगितलं यातलं कुणाला सांगितलं नाही ते सांगा जरा मला। साक्षी शिंदे, हा सर, सगळ्यात पहिल्यांदाच सांगितलं होतं. हा म्हणजे तू अभ्यास केलास, पहिलाच सुरू केलास का? हा म्हणजे फर्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं ना चौघांना, त्यात माझा रोल नंबर होता. बरं आज मग आता परत करतेस, द्यायचे. हा चालेल की. बरं ठीक आहे, तू करून ठेव, मी सांगितल्यानंतर दाखव। समीक्षा कोण आहे, समीक्षा? यस सर. समीक्षा तू काय कर, षट क्रियाकालचा इम्पॉर्टन्स लिहून मला दाखव उद्या। ओके सर. ओके थँक्यू। नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सुरू करतोय, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची मॉडर्न आणि आयुर्वेद फिजिओलॉजी। काय करणार तुम्ही त्यासाठी, आता तयारी